गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 7। थोड़ी सी है हलचल शहर में, धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं। शहर में चहलकदमी बढ़ते हुए ये गन्ने की दुकान भी खुल गई है। ये जूस की दुकानें यहाँ से अड्डा मारते हैं। ये छत के ऊपर ये टिफ़िन किसने रख दिया है? ये कोई भूल गया रखे। सुबह सुबह खाने का स्टॉल बढ़िया है। हाँ, सुबह सुबह आ जाते हैं लोग। चाय हेल्दी है। ये देखो ठाकुमा ठाकुमा, वो भाई साहब एकदम ज़बरदस्त बिल्डिंग है। ये अपार्टमेंट है, यहाँ पे लोग रहते हैं। बताओ, इतना शानदार है ये, और बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है। बहुत 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 ऊंची। ठाकुमा सुबह सुबह काम कर रही हैं बढ़िया से, एकदम मस्त तरीके से। सुबह सुबह ये भी खुल गया है बढ़िया। एक गलियारी, कुछ चिंगड़ी माछ और ये सब खाना है। बढ़िया है, वैसे हेल्दी है। तुमने कोल्ड कॉफ़ी के लिए बोला है। लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर है। थाईलैंड में तो थोड़ा बहुत समझ जाते थे, यहाँ तो बिल्कुल ही लोगों को आते, ना कहीं लिखा होता है इंग्लिश में, तो थोड़ी दिक्कत आती है। वैसे सुंदर सी बिल्डिंग है ये, यूरोपियन स्टाइल, एकदम मस्त। Okay. ये आ गए भैया हमें लेने। So because you know we can't stop here. If we stop here, police come. Okay. That's why we stop on the other side this way. ओके। ये है हमारी बस, इसमें बैठेंगे हम लोग। नाइस। Nói trước đi. अच्छी है बस। दोस्तों, कुछ ही टनल की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में हमारी पहली स्टॉप होने वाली है, लैमफथ हैंडीक्राफ्ट सेंटर। यह जगह सिर्फ एक शॉपिंग स्टॉप नहीं है, बल्कि उम्मीद और हुनर की एक मिसाल है। यहाँ काम करने वाले ज्यादातर कारीगर दिव्यांग हैं, जिनमें से कई वियतनाम युद्ध के असर या एजेंट ऑरेंज से प्रभावित परिवारों से हैं। लेकिन इनका हुनर देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ 15 से 20 मिनट रुककर इन कारीगरों की कला को देखना और उनका हौसला बढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब यहाँ थोड़ा घूमते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। Local guys here, nice to meet you, and thank you very much for your visits. Our factories also visits the handicapped worker here, and open since 1976. We are belong to the Department of War Victim, and have a lot of the job for the handicapped worker here, also who is affected by Agent Orange. And this dress has the name is Ao Yai. For the white dress, we are using eggshell inlay on the dress to have that easy show. And the girl in the middle over here, we are hand painting color together. Yeah, this step that is more typical than the eggshell inlay a lot because she needs to cutting patient and carefully. Proud of the eggshell, how to mix it together. The eggshell inlay, here we're just using duck egg. We are Zhongyu chicken egg because duck egg is more stronger and thicker than chicken egg. The white color is natural color, the brown color that is burning color. And the first we need to draw in the design on top of the pictures like this one. And then we will using the black lacquer. We cover on top of the pictures a little bit. Seashell is more the pearl. We take this one from the sea in Nha Trang of Vietnam because Nha Trang Bay will get the seashell more bigger. Before we polish the pictures, we need to cover many layers of black lacquer for the pictures like this. After we cover the lacquer, we will dry it under the sunlight a few days until the lacquer dries ready. To make the picture shiny like this one, we will using car cream. Car cream we mix with hot water, lemon juice and turtle wax. We mix together and then we will cover on top of the pictures a little bit. After that, we using hand.
तो आ चुके हैं हम लोग कोजी टनल के एंट्रेंस पे। Alright, and the toilet. It's done. Use by both sides. You can do that more time. From the river. And oxygen from where? From the air. Then drive it. All the way down. तो अभी देखा कैसे कितना ख़तरनाक बना रखा है इन्होंने। एक सैंपल देखा था टनल का, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया और 20 साल लगे उनको टनल खोदने में। Tunnel and the top of tunnel. French. French. Are these French? French. Oh. So this is the trend. There's no snake here, but we have scorpion and spider in the tunnel. Yes, at back. Air ventilation. 41. The most powerful tank led by US Army. This it's been सोचिए, आप एक घने जंगल में हैं और अगला कदम रखते ही जमीन फट जाए और आप सीधे लोहे की नोकीली किलो पर गिरें। मैं खड़ा हूं वियतनाम के उन कूची टनलों में जहां मौत हर कोने में छुपी थी। लेकिन आपको पता है, बूबी ट्रैप्स ने हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो रेम्बो को जन्म दिया। ये जो जाल आप देख रहे हैं, पोंजी स्टेक्स, स्विंग ट्रैप्स और डोर ट्रैप्स, यही वो असली वजह थी जिसने अमेरिकी फौज की नींद उड़ा दी थी। जब हम रैम्बो फर्स्ट ब्लड देखते हैं तो जॉन रैम्बो शेरिफ की पुलिस से बचने के लिए जंगल में वही पुराने गुरिल्ला वॉरफेयर के तरीके इस्तेमाल करते हैं जो उसने वियतनाम युद्ध के दौरान इन्हीं सुरंगों के आसपास सीखे थे। रैम्बो ने इन टनल्स से 3 बड़ी चीजें सीखी थीं जो उसने अपनी मूवीज में दिखाई। एक, इम्प्रोविजेशन, जैसे वियतनाम के लोग पुराने बमों का बारूद निकालकर नए ट्रैप्स बनाते थे, वैसे ही रैम्बो जंगल की लकड़ियों और पत्थरों से मौत का जाल बुनता है। 2, द बैम्बू स्पाइक्स। फर्स्ट ब्लड का वो सीन याद है जब रैम्बो एक लकड़ी का ट्रैप बनाता है और जो पुलिस वाले की टांग चीर देता है, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा यहां के लोग बैम्बू स्पाइक्स का इस्तेमाल करते थे। 3, इनविजिबल एनिमी कूची टनल्स का मंत्र था, दिखो मत, सिर्फ वार करो। रैम्बो ने भी दुश्मन के बीच रहकर उन्हें दिखाई दिए बिना खत्म करना इन्हीं घने जंगलों से सीखा। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, यहाँ लड़ाई चल रही है, वहाँ गोलीबारी हो रही है यूएस आर्मी और वियतनाम के बीच में। You are no longer a tourist. You are in the army. One by one. Firstly. यहाँ शूटिंग रेंज है, शूटिंग चल रही है। हाँ, गन देखो, गन। बहुत ही खतरनाक, दिल दहल रहा था। मैं घूम के लिए गया था। वाह, देखो असली, बताओ, मस्त। पेपर एंड राइस वाइन परफॉर्मर हाउस है।
राइस पेपर बन रहा है यहाँ पे, यहाँ बनता भी है राइस पेपर। This is the girlfriend you were talking about. You bought bike for her? Yeah. Under the hole there was a guy. Dig the tunnel. Look now you see him. He's under the hole. Go to the river. 20 over there. ये जो फाइटिंग बंकर है, अभी हम जाने वाले हैं इसके अंदर। ये घुस चुके हैं हम बंकर के अंदर। सांस फूल रही है मेरी तो। जाता हूँ मैं बाहर यहाँ से। मैं तो तुरंत आ गया अंदर गुफा में, जाके तुरंत बाहर आ गया क्योंकि घबराहट हो रही थी ऑक्सीजन की ना, ऐसा लग रहा था कमी है, तो इसलिए बाहर आ गया। मैं नहीं चाहता था कि वहाँ पे बेहोश हो जाऊँ। तो दोस्तों, अगर आपको लगता था कि रैम्बो के स्टंट्स सिर्फ स्क्रिप्ट थे, तो आज आपने असलियत देख ली। ये मैं कहूँ डेल्टा का आइटम है। व्हाट इज दिस? कसावा। तो अभी हुआ है टी ब्रेक कसावा के साथ। अगर आपने अपने जीवन में रैम्बो मूवी की सीरीज नहीं देखी, तो आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया। अरे लड़की कोई और गई थी, निकली कोई और। मोटी होके आई है अंदर से। I'm not strong enough. तो कूची टनल बाय बाय। तो यहाँ हम आए लंच ब्रेक के लिए। सच अ लवली प्लेस, वाह। नाइस। ये देखो कितना अच्छा बना रखा है अंदर से। तो ये आ गया हमारा चिकन फो। ये चिकन का पीस है, जो कि ये लोग जो बनाते हैं पूरा चमड़े के साथ चिकन को बनाते हैं यहाँ के लोग, जो है देख सकते हैं। अच्छा टेस्ट है। बढ़िया है। दूसरा आइटम ये मंगाया है, ये मछली का आइटम है एक। इसमें जो है जो मसाला है जो आप देख रहे हैं, इसमें लेमन ग्रास है और पार्सले है और थोड़ा जीरा मिक्स है। स्वाद आ रहा है उसका मसाले का। ये सोया सॉस लेंगे थोड़ा सा। ठीक ठाक है, इंडिया से अलग है। इंडिया में ज़्यादा मज़ेदार है ऐसी तली हुई मछली फ्राइड फिश। तो वापस हम लोग चल दिए कोची टनल से हो ची मिन सिटी। सी यू। आ गए थे वापस, उतर गए बस से। आइसक्रीम खा रहे थे हम, बैठे पार्क में
अच्छा पार्क है, बड़ा है काफ़ी। आज वीकेंड है, सैटरडे संडे यहाँ लोगों की छुट्टी होती है, तो सब कसरत करने आते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं। और वैसे भी यहाँ के लोग जो है ना बॉडी को लेके, हेल्थ को लेके कॉन्शियस है। कुछ ना कुछ जब बच्चे से लेके बुढ़े तक एक्सरसाइज, फिजिकल कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहेंगे। अगर इंडिया होता ना, पार्क में कहीं कोने में कोई बेवड़ा बैठा होता या स्मैकिया बैठा होता या कोई सुल्फा पी रहा होता। यहाँ के लोगों को फुटबॉल का बहुत शौक है। वेरी गुड। इधर देखो बूढ़े मानुष को, सब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं अच्छे से। अरे ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये कैसी एक्सरसाइज है? शवासन। अच्छा पैर टूट गया एक्सरसाइज करते करते। ये नाला नहीं है, नाला ये है डैर, इसे बोलते हैं डैर। हाँ, हमारे मुरादाबाद की भाषा है डैर। आए देखो मछली, डैर की मछलियाँ। बेचारे बच्चों की बॉल जो है पानी में चली गई। एक ये बॉल है और एक ये। तो अभी हम आए हैं, ये टाका करके है, रुपए नहीं है, टाका है ये, सेंट्रल मार्केट। यहाँ यानी सस्ता मिलना चाहिए अगर टाका है तो। अंडरग्राउंड मार्केट है ये। कहने की बात है, यहाँ पे कपड़े सस्ते मिलते हैं और सामान सस्ता मिलता है, इतना भी सस्ता नहीं है। गहने ही गहने हैं। वाह, काफ़ी महंगे हैं कपड़ों के प्राइसेस। हो ची मिन्ह के सेंट्रल मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद हमने इस खूबसूरत शहर को अलविदा कहा और सीधे फ्लाइट पकड़ दी हनोई के लिए। लेकिन असली मजा तो तब शुरू हुआ जब हनोई से बस का सफर तय करते हुए, खूबसूरत रास्तों और नजारों का आनंद लेते हुए हम पहुंचे सीधे सापा। अगले एपिसोड में देखिए हमारे साथ कैट कैट विलेज की एक अनोखी दुनिया, जहां आपको देखने को मिलेगा वियतनाम का रिच कल्चर, वहां का टेस्टी लोकल क्यूजीन, दिल छू लेने वाले पारंपरिक नृत्य और यहाँ के लोगों का सादा रहन सहन। तो इस पूरे सफर में मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।